Hello everyone, welcome to Dr. MDS Academy. Today in this lecture, I am going to cover governor. In last lecture, we had seen and done some problems flywheel based on flywheel topics. So, in this lecture, we are going to discuss governor. And in governor is see the governor is not very much important topic for the gate point of view. Till now, only two questions have been asked. Okay, based on governor. Okay, but are quite important for the engineering service point of view and other central level examinations. Okay, so what we understand in this governor: height of governor, equilibrium speed, mean equilibrium speed, max and minimum equilibrium speed. Okay, so all such definitions are generally being asked in the objective type questions. So you have to get aware of all those definitions. Then after, in case of what governor, what is the height? Okay, in the from flywheel to up to the point where the axis of the arms and the sleeves intersects. What is the height? Okay, at different rpm. Okay, so this we calculate. And what is the sensitiveness of the governor? Okay, and different definitions we come across this chapter. Hunting, stability of the governor, what is that? Then isochronous governor, which is very much important, and this graph is very important, and several times the question have been asked based on this graph. Okay, what is a stable, asynchronous and unstable, where the graphs are located. Okay, so based on all these topics which we seen right now, okay, we are going to solve some of the previous year questions. Okay, so see here the gate one question. Okay, the figure shows a schematic of a simple watt governor mechanism with a spindle 1 O2. Where is that 1 and O2 are 2? This is the axis of the spindle. Okay, this one. This is the axis of the spindle. This one. Okay, and rotating at angular velocity omega with a vertical axis. The balls at P and S have equal mass. P and S have equal mass. जो मास यहाँ पर डाउनवर्ड साइड में आ रहा है, ओके, दैट इज M. Same mass is here also, only the names are different. Okay, assume that there is no friction anywhere and all other components are massless and rigid. The vertical distance between the horizontal, ठीक है, this horizontal plane of rotation of the balls means ki ball when this omega, okay, how the rotation of the path will be something like this. ठीक है, कुछ इस तरीके का रोटेट कर लाइक दिस, है ना, इस तरीके से। यहाँ पर पी बॉल है, फिर ये बॉल यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, लाइक दिस इट विल रोटेटिंग विद, ओके। The vertical distance between the horizontal plane of rotation of the ball and the pivot O1, this O1 is denoted by H. The value of H is equal to 400 mm at a certain omega. If omega is doubled, the value of H will be how much? Okay. See, we know that in derivation what we had seen? We had seen that if we are having this axis, see, this axis, okay, axis of spindle, and this is our what? This is our arm axis, arm axis in both side. Okay, this is our what? Ball. One ball is P and another on other side, okay, for balancing. Okay, and this is what our, this will be our what? Link. Okay, so this is our link. So this is what? This is our what? Arms. Okay, and this one is our, this is our links. Okay, on both side.
Now this is connected with, no doubt, with throttle और स्लिप्स। ओके, कुछ इस तरीके का स्लिप्स है, हालांकि इसका जरूरत नहीं है यहाँ पर। ओके, फॉर द डेरिवेशन आई एम डूइंग हियर, दिस इज आवर स्लिप्स। ठीक है, यहाँ पर ऐसे बेल क्रैंक से जुड़ा हुआ रहता है। नाउ दिस इज आवर स्लिप्स, स्लिप। ओके, दिस इज आवर fly ball. Okay, this is at O1. This is our what, spindle axis। ठीक है, ये अब इसका डेरिवेशन यदि किया जाए मेरे को, तो कैसे करेंगे? सी, बॉल का कुछ ना कुछ वेट है, दे रखा है क्वेश्चन में ना, तो बॉल का वेट यहाँ आएगा नीचे, है ना। दिस इज आवर व्हाट, mg, वेट इक्वल टू mg। ओके, और ये हाइट कितना है, यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना दे रखा है, दिस इज आवर व्हाट, h, given na here, h। now since it is rotating with angular velocity omega na, so definitely the centrifugal force will be acting outward, fc, which will be given as m omega square into r। r is what, r is the this one radius, this radius। okay, यदि ये रोटेट हो रहा है, कैसे रोटेट हो रहा है, हाउ द इट इज रोटेशन इज टेकिंग प्लेस, रोटेशन इज बीइंग टेकिंग प्लेस लाइक दिस। ठीक है, तरीके से रोटेशन इस तरीके से, है ना, इस तरीके से बॉल तरीके से रोटेट हो, दिस इज द प्लेन ऑफ आवर रोटेशन। नाउ कमिंग बैक टू आवर डेरिवेशन पार्ट, हियर इस वाले और कोई फोर्स तो काम नहीं कर रहा, हियर फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, हाउ कैन आई राइट, ओके, टेक मोमेंट अबाउट ओ, टेक मोमेंट अबाउट ओ, ओके, दिस ओ या O1, जो भी है ना, O1 है तो O1 करो। ठीक है, देखो ये क्या है, एफ सी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नो ना, इन फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो क्या है, ये वाला ऐसे एक्सटेंड करें, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है क्या, है ना, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना गया, तो हम लोग कह सकते हैं क्या, एफ सी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज एच हियर, ओके, इक्वल टू, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ रहा है क्या, ठीक है, एम जी या डब्ल्यू इंटू डिस्टेंस दैट इज आर, about O we are taking out, ठीक है, this force into distance about this, okay, and m into g into this, ठीक है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस h हो गया, w के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस r हो गया, ठीक है, लाइक दिस। ओके, तो यहां से थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, एफसी को क्या लिख सकेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, दिस इज आवर व्हाट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, और ये हो गया हमने वेट ऑफ बॉल या फ्लाई बॉल। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या कंट्रोलिंग फोर्स भी, ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, ये हो गया इंटू एच, इक्वल टू डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, एम जी, एम जी इंटू आर, सो आर से आर कैंसिल, ओके, एम से एम कैंसिल, okay, what we are getting, h is equal to g upon omega square, okay, now finally h is equal to g को what can I write, 9.81, okay, in meter per second square, omega is what, omega is equal to 2 pi n upon 60, can I write, okay, 2 pi n,
सो 2 पाई अपॉन 60 का स्क्वायर इंटू n का स्क्वायर, ठीक है। तो व्हेन यू विल डू डेरिवेशन ना और कैलकुलेशन ना, so when you will multiply and divide, you will be getting 895 upon n का square. This will be our what? The final expressions. Okay. After derivation, you will be getting. Now coming back to our questions. Okay. Same thing I will be using here. Same thing I will be using here. Okay. So what the formula we have derived? H is equal to 895 upon n का square. Okay. Now in question it is given if h is 4, ठीक है, 400, दो कंडीशन के लिए है। यदि ओमेगा डबल कर देते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट ये वाला भी हम लोग एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला यूज ना करें, ठीक है, क्योंकि ओमेगा के टर्म में यू कैन यूज बोथ वन, ठीक है। h इज इक्वल टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। सो h is 400, h1 is 400, एंगुलर वेलोसिटी क्या है इसके लिए? ओमेगा है। इफ ओमेगा इज डबल्ड, यानी दूसरा कंडीशन है डब्ल्यू, टू डब्ल्यू, तो एच टू क्या होगा ये पूछा है ना, एच टू इज बी वाट, ओके। तो सिंपली यू हैव टू कीप ऑल दिस टू इन फर्स्ट वन। तो एच वन इक्वल टू जी अपॉन ओमेगा वन का स्क्वायर, हियर एच टू इक्वल टू जी अपॉन ओमेगा टू का स्क्वायर, ओके। तो क्या आया यहाँ पर? h1 कितना है पहले वाला में? 400, ओके, इजिकल टू जी, जी इज, जी को जी रहने दो, ओमेगा वन का स्क्वायर, ओमेगा वन स्क्वायर इज हाउ मच गिवन? दिस इज आवर ओमेगा वन, ओमेगा वन इज इक्वल टू ओमेगा, दिस इज आवर ओमेगा टू, ओमेगा स्क्वायर दे रखा है, इसके लिए क्या दे रहा है ये तो निकालना ही है। जी को जी रखेंगे, ओमेगा टू, ओमेगा टू हाउ मच गिवन? 2w, कैन आई राइट 2w का स्क्वायर, सो 1, दिस इज आवर 2, ठीक है। तो so can I write like this? 2 divided by 1, h2 divided by 400, k, g अपॉन 2w का स्क्वायर, है ना, यहाँ क्या आएगा? 400 का g इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। क्या आ गया? h2 अपॉन 400 इज इक्वल टू g से g कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 टू जा 4 ओमेगा स्क्वायर, दिस कैंसिल, k, so finally this 100, okay, so h2 you are getting is 100, और ये 400 किस में था? यूनिट क्या था 400 का? 400 का यूनिट mm में था, तो डेफिनेटली h2 भी mm में ही आएगा। तो फाइनली आवर आंसर विल बी व्हाट? h2 is equal to 400 mm, so this will be our final correct answer, 400 mm, okay। Now moving to our next question, since already I have told you na, so very few questions you will find from the governor in GATE exam, okay। So remaining questions I am going to I have taken from the engineering service exam। Now क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज द सेंसिटिवनेस ऑफ द गवर्नर। देखो काफी सारा डेफिनेशन होता है ना, इसमें से एक डेफिनेशन है सेंसिटिवनेस। सेंसिटिवनेस ये क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है सेंसिटिवनेस। सपोज वी आर हैविंग ए टू गवर्नर, वन इज ए, ओके, अनदर इज बी गवर्नर, ठीक है, बोथ आर रोटेटिंग एट से एट सेम स्पीड 200 आरपीएम से, ये भी दूसरा वाला भी n इज इक्वल टू 200 आरपीएम, है ना। अब मैं करता हूँ नाउ इंक्रीज द स्पीड, टिल n मैं इंक्रीज कर दिया सपोज 50 आरपीएम,
50 आरपीएम इंक्रीज कर दिया। यहाँ पर भी मैं डेल एन इंक्रीज कर दिया, बी गवर्नर को भी। ठीक है, क्या है, गवर्नर, गवर्नर, ठीक है, डेल एन को भी इंक्रीज कर दिया 50 आरपीएम, है ना। तो फाइनल इंडेक्स क्या आ गया, 250 आरपीएम पे गवर्नर ए इज रोटेटिंग। सिमिलरली इंडेक्स ये भी आएगा 250 आरपीएम। ओके, तो इससे क्या पता चल रहा है, दोनों गवर्नर ए एंड बी आर रोटेटिंग विद द सेम आरपीएम। ओके, बट सेंसिटिवनेस को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करते हैं। इफ गवर्नर ए इज राइज्ड बाय एच हाइट, ठीक है, स्लीव है, स्लीव है, स्लीव क्या होता है, गवर्नर का राइज करता है, ठीक है। जैसे ये मेरे पास क्या है, और व्हाट, हो गया, दिस और बॉल से, ये बॉल हो गया, है ना। और यहाँ पर सपोज मेरे पास एक लिंक गया, यहाँ पर भी एक लिंक हो गया, है ना। और ये चूल्हा किससे होती है, ये स्टॉपर हो गया सपोज मेरे पास, क्या है ना, या यूं समझे यहाँ से, है ना, यहाँ पर देखो, ये हम लोगों का क्या हो गया, स्टॉपर हो गया, दिस इज स्टॉपर, दिस इज स्टॉपर। हियर दिस स्लीव मूव्स अप एंड डाउन दिस पोर्शन, ठीक है। ये जो पोर्शन है हम लोगों का, विच पोर्शन, ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन मूव्स अप एंड डाउन, डू अप एंड मोशन। ये जो यहाँ से सेंटर से अप भी जा सकता है और ये ऐसे डाउन भी जा सकता है, ठीक है। अब ये फ्लाई व्हील कैसे रोटेट कर रहा है, कुछ इस तरीके से यहीं पर, है ना, ये एंगुलर वेलोसिटी कुछ इस, है ना, इस प्लेन पे। यदि ये काफी ज्यादा हाई ओमेगा पर इंक्रीज, रेडियस इंक्रीज करेगा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है इसका, है ना, तो रेडियस और बढ़ेगा, मतलब बॉल यहाँ शिफ्ट करेगा, बॉल यहाँ शिफ्ट करेगा। ओमेगा जैसे इंक्रीज करते हैं तो आर रेडियस बढ़ता है, यानी कि आर रेडियस क्या हो गया, न्यू आर रेडियस दिस, ओके। और ओमेगा बढ़ाएंगे तो और क्या होगा, यहाँ पर जाएगा, जैसे और हम लोग बढ़ाएंगे और क्या होगा, और हम लोगों का यहाँ पर चला जाएगा, है ना, और जाएगा। ये हो गया नीचे डायरेक्शन में, सेंटर से लेकर ये आर हो गया। तो मोर आर, मोर ओमेगा, मोर आर, दिस इज देन इन दैट कंडीशन स्लीव विल मूव अप। ओके, जैसे जैसे ओमेगा हम लोग घटाएंगे वैसे वैसे आरपीएम क्या होगा, सॉरी रेडियस क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो यदि मेरे को फर्दर घटाना है तो क्या होगा, ये वाला हो गया, उस ये हो गया, है ना, दोनों साइड का बॉल, यहाँ से हो गया एम जी, यहाँ से यहाँ तक से रेडियस आर सी, smaller is the omega, smaller is the r. So here in the question, more is the n, okay, more should be the r, लेकिन हम लोग सेंसिटिवनेस a, यदि हम लोगों का h, आइडियल केस में दोनों h होना चाहिए, राइज, यदि क्योंकि हम लोग आरपीएम वी हैव इंक्रीज्ड, h होना चाहिए। लेकिन यदि a इसका हो गया हाइट, ऊपर चढ़ा, हाइट कौन सा हो गया गवर्नर का, दिस हाइट, दिस हाइट, कौन सा हाइट, यदि मैं इसका ये वाला हाइट, ये हाइट, ठीक है, बॉल से लेकर यहाँ तक का, बॉल से लेकर, ठीक है, ये वाला पी तक का हाइट, ठीक है। इस केस में देखा जाए,
इस केस में क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एक्सिस इज एच। ओके, नाउ इन द क्वेश्चन सी हियर, यदि एच ए है और इसका एच बी है, दोनों बराबर होना चाहिए आइडियल केस में। if the governors a and b, okay, लेकिन if एच ए ओके इज ग्रेटर देन एच बी, ठीक है, यदि हो रहा है तो क्या कहेंगे कि सेम आरपीएम पर हाइट यानी स्लीप ज्यादा ऊपर चढ़ गया, तो कह सकते हैं कि यस गवर्नर ए इज मोर सेंसिटिव। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ही आरपीएम बढ़ाने पर वो क्या हो रहा है, अपना हाइट ज्यादा तेज पकड़ ले रहा है। ओके, सो दिस इज, अब डेफिनेशन पे आते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन? सी इज सेंसिटिवनेस, द सेंसिटिवनेस ऑफ द गवर्नर, ओके, सेंसिटिवनेस of governor is equal to ratio of difference between the maximum speed and minimum speed, यानी कि n2 minus n1 upon mean equilibrium speed. Where what is that n1? N1 is what? Maximum equilibrium speed. Okay, what is, sorry, ये n2 होगा, है ना, n1 हो गया। n1 is what? Minimum इक्विलिब्रियम स्पीड। ठीक है, अब समझते हैं कि मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड और मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड होता क्या है। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड क्या होता है, जैसे कि मेरे पास बॉल है ना, ये बॉल है और ये लिंक से ऐसे लगा हुआ है ना, ये मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड मतलब मैक्सिमम रेडियस पर जो बॉल रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ यहाँ पर रेडियस होगा, इसका मिनिमम रेडियस भी तो हो सकता है, मिनिमम से मैक्सिमम वेरी करेगा ना बीच में। यदि हम लोगों का मैक्सिमम यहाँ पर हो रहा है, ठीक, ये वाला, दिस मैक्सिमम, दिस इज आवर आर मैक्स, तो यहाँ पर जो रोटेशन हो रहा है चारों तरफ से, n1 n2 कहेंगे इसे, n2 मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड। ठीक है, सेम चीज यदि सेम चीज हम लोग इसके लिए कहेंगे, यदि मिनिमम, यदि ये है, ठीक है, यहाँ पर रोटेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज आवर आर, सबसे छोटा है, तो जाहिर सी बात है धीरे 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 हम लोग का क्या होगा, बॉल ऐसे 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 गोल गोल घूमेगा, है ना, इसमें बहुत तेजी से घूमेगा, तो एट दिस स्पीड दिस इज नोन एज n1। ठीक है, सो मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड defined as speed at the maximum radius of rotation of the ball without the sleeves tending to moves up or down। ठीक है, ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बस एक बार ऊपर चला गया, मैक्सिमम पर अटेंड कर गया, दैट स्पीड इज n2। ओके, व्हाट इज n1? n1 इज द मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड, क्या होता है, द स्पीड एट द, ये n1 का डेफिनेशन आई एम सेइंग, the speed at the minimum radius of rotation, minimum radius ये है m mean, minimum radius of rotation of the ball for which tending to moves neither the slips moves up and down। Okay, what is n here? N is the mean equilibrium speed, mean equilibrium speed। okay, क्या होता है mean, मतलब एवरेज, तो n is equal to n1 plus n2 divided by 2। okay, so this is what, ये होता है ना। अब इसको ये वाला वैल्यू यहाँ पुट करो, ये 1 हो गया, 2 हो गया, पुट 2 in 1, you will be getting correct answer, put 2 in 1। ठीक है, क्या आएगा, सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर, सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर क्या आया,
sensitiveness of governor is equal to n2 minus n1 divided by n. पुट करो n2 minus n1 divided by n. n क्या है? n1 plus n2 divided by 2, यानी कि n2 minus n1 divided by ऊपर 2 चला गया, n1 plus n2, है ना? देखो मैच कर रहा है, कोई भी ऊपर में माइनस होना चाहिए, ये माइनस है, ये भी माइनस है, लेकिन ये 2 नहीं होगा, यहाँ पे ऊपर में 2, ठीक है, ऊपर में 2 होगा, दिस इज, तो आंसर विल बी आवर डी. डी इज द करेक्ट वन. ओके, तो वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल बी फेसिंग, ओके, इन गवर्नर, लेकिन कुछ अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन भी है, ठीक. चलो अब यहाँ पे आते हैं, क्या बोल रहा है? द कंट्रोलिंग फोर्स curves for a spring control governor are shown in the above figure. Which curve represents a stable governor? ठीक है, देखो जब भी स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर का हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करते हैं ये और ये, ठीक है, दिस इज आवर व्हाट, एफ सी, कंट्रोलिंग फोर्स, ठीक है, दिस इज आवर आर, रेडियस ऑफ रोटेशन. तो ये वाला जो ग्राफ होता है जो ओरिजिन से पास होता है, व्हाट इज एफ सी? एफ सी इज इक्वल टू कंट्रोलिंग फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. इसी को हम लोग सेंट्रीपेटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. देखो एम ओमेगा स्क्वायर मास ऑफ द बॉल, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, तो इसको क्या हम लोग स्मॉल ए लिख सकते हैं, दैट इज कांस्टेंट. तो आर इज व्हाट, कांस्टेंट, ठीक है. ये किसका डिफिनेशन है? y इज इक्वल टू एम एक्स का है क्या? लाइन का इक्वेशन क्या होता है? एम एक्स प्लस सी, लाइन का इक्वेशन. यहाँ पर सेम थिंग, कैन आई राइट हियर y इज इक्वल टू एम एक्स वेयर c इज कांस्टेंट, जीरो हियर इन दिस केस. इसका लाइन ये वाला प्लॉट करें कैसे होगा? y क्या है? y क्या है? एफ सी है, ठीक है, इज इक्वल टू m स्लोप है, and what is x here? X is r, means this is our x r and this is our y, fc. तो ये लाइन होता है क्या? y is equal to mx का, c यहाँ कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ जीरो से पास हो रहा है. तो कैन आई राइट हियर fc is equal to m into a into r, where a and r are constant, ठीक है, जैसे जैसे r बढ़ रहा है वैसे वैसे fc भी बढ़ रहा है, ठीक है. अब इसके अलावा दो और कर्व बनते हैं, ठीक है, कौन कौन सा कर्व? एक कर्व ऐसे पास होगा, ठीक है, ऐसे होगा, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, ये देखो, है ना, ये वाला क्या है? दिस इज आवर फोर्स ही होगा ना, वाई एक्सिस पर, माइनस बी में लेता हूँ, तो ये लाइन क्या होगा? एफ सी इज इक्वल टू ए आर तो था ही, लेकिन मैं यहाँ पर प्लस सी के जगह कहना है राइट माइनस बी, क्यों? क्योंकि सी जो है इंटरसेक्ट ऑन द वाई एक्सिस इज माइनस बी. वाई का यूनिट होगा मीटर, ये भी तो सी का यूनिट सी के बराबर ही होगा ना, एफ वाई और सी, ठीक है, अल्टीमेटली सी वाई को ही है ना दिखा रहा है, तो वाई पर जो होगा हम लोग इंटरसेक्ट माइनस बी होगा, तो माइनस बी वी विल व्हाट वी विल डू, माइनस बी करेंगे. एक तीसरा टाइप का आएगा हम लोगों का, क्या? तीसरा टाइप का आएगा जो यहां से पास करेगा, ठीक है, इसको बोलेंगे एफ सी इज इक्वल टू ए आर, या माइनस बी था, या जीरो था, या प्लस बी करेंगे, मतलब सी इज इक्वल टू बी हो जाएगा, मतलब इंटरसेक्ट ये हो जाएगा हम लोगों का, दिस विल बी और व्हाट, प्लस बी, ओके. सो इसको बोलते हैं आइसोक्रोनस, ठीक है. आइसोक्रोनस क्या होता है? आइसोक्रोनस, गवर्नर इज सेड टू बी आइसोक्रोनस इफ इक्विलिब्रियम स्पीड इज कांस्टेंट,
है ना। इसका डेफिनेशन इक्विलिब्रियम स्पीड इज कांस्टेंट मींस देयर इज नो मींस n2 minus n1 equal to 0 for isochronous. n1 minus n2 equal to 0 for isochronous. ठीक है, for isochronous range of speed is 0. ठीक है, speed is range of speed equal to 0. ओके, फॉर आइसोक्रोनस। तो क्या होता है डेफिनेशन आइसोक्रोनस का? आइसोक्रोनस बोलता है फॉर आइसोक्रोनस गवर्नर इक्विलिब्रियम स्पीड इज कांस्टेंट, यानी कि कोई भी फॉर ऑल रेडियाई ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल विद इन द वर्किंग, कोई भी रेडियस ले लो, ठीक है, यानी कि ये वाला रेडियस ले लो, यदि मेरे पास ये बॉल है, ठीक है, और ये रेडियस हमें आर है, और तो यहाँ पर जो आरपीएम मिल रहा है, सपोज इन मिल रहा है, दूसरा वाला हम लोग गए, दूसरा वाला हम लोग रेडियस ले लें, ठीक है, ये वाला, तो इसका रेडियस कुछ और मिलेगा आर, इसका भी इन मिलेगा, जैसे ये था वैसे ही। तीसरा ले लें, है ना, तीसरा ले लें, यदि मैं ये वाला ले लूं, है ना, यदि ये ले लूं, इसका जो हम लोग का रेडियस हो गया, ये R1 हो गया, ठीक है, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ठीक है, रेडियस अलग अलग है ना, लेकिन इसका भी आरपीएम हम लोग का n। तो इन दैट केस मीन्स रेंज ऑफ स्पीड इज 0 मीन्स हर रेडियस पे इन ऑल रेडिया ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल्स वी आर गेटिंग द सेम सिंगल वन आरपीएम, दिस इज नोन एज आइसोक्रोनस। इसीलिए तो ए कांस्टेंट है, ए है क्या, ए क्या था, ए क्या था, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, ए मतलब आर वर आर एक्स एक्सिस पे इंक्रीज हो रहा है तो एफ सी भी वाई एक्सिस पे इंक्रीज हो रहा है, ओनली ये वाला कांस्टेंट था यहाँ पर, इसीलिए ये को कांस्टेंट यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब ओमेगा कांस्टेंट है हमेशा, ओमेगा कांस्टेंट या एन कांस्टेंट एक ही है, क्यों, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन अपॉन 60 होता है, ओके, यानी कि पाई भी कांस्टेंट 60 भी कांस्टेंट, तो ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, है ना, एन के टर्म में बात करो या ओमेगा बोथ सेम, इसीलिए आर बढ़ रहा था एक्स एक्सिस में तो एफ सी वाज अब्सेंट, ओके, वेयर ए वाज कांस्टेंट, दिस वाज द केस ऑफ आइसोक्रोनस। इसे बोलते हैं स्टेबल, स्टेबल, और इसका जस्ट अपोजिट होगा अनस्टेबल गवर्नर, ठीक है। अब ये स्टेबल क्यों है, अनस्टेबल क्यों है, ठीक है, इसके लिए सोच विचार करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, द कंट्रोलिंग फोर्स यहाँ पर अनस्टेबल इसलिए है, ओके, क्योंकि जैसे जैसे रेडियस बढ़ा रहे हैं तो क्या होना चाहिए, एन का वैल्यू, या यू कहें इन जैसे जैसे हम लोग को बढ़ाना चाहिए, ठीक है, तो आर का वैल्यू यहाँ पर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन अनस्टेबल केस में डिक्रीज होता है, ठीक है, दैट्स वाई इट इज अनस्टेबल। हाइवर इन केस ऑफ स्टेबल, इन बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आर का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है ना, ज्यादा रेडियस, ज्यादा आरपीएम, ज्यादा बड़ा फ्लाईव्हील, बॉल फ्लाईव्हील जो होगा और दूर भागेगा अपने स्लिप के एक्सिस से, ठीक है। तो दिस इज द केस फॉर द स्टेबल, ठीक है, और यही होना चाहिए, दिस इज द मोस्ट आइडियल वन जो हम लोग चाहते हैं। हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि आइसोक्रोनस गवर्नर हमेशा मिले, ठीक है, ड्यूरिंग द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नर, दिस इज द आइडियल वन, आइडियल वन, ठीक है, ये कभी होता नहीं है, क्योंकि गवर्नर प्रैक्टिकली तो वेरिएशन आएगा ही, ठीक है। तो हम लोग आइसोक्रोनस गवर्नर के नीचे वाला जो कर्व है उसको ये होना चाहिए, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल फॉलोस, ठीक है, ये फॉलोस होता है प्रैक्टिकल, ठीक है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है अनस्टेबल।
ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द कंट्रोलिंग फोर्स कर्व्स फॉर द स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर एज शोन इन द अबव फिगर व्हिच कर्व्स रिप्रेजेंट्स स्टेबल। जाहिर सी बात है नीचे वाला सबसे, ठीक है, 3 वाला होगा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन विल आंसर विल बी व्हाट, 3 वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, which one of the following statement is correct। ठीक है, गवर्नर विल बी स्टेबल इफ द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल क्या होता है, मैं क्या बताया था यहाँ पर, स्टेबल के केस में हमेशा क्या होगा, रेडियस ऑफ रोटेशन, ठीक है। यहाँ पर स्टेबल के केस में क्या होगा, यही वाला लाइन है, बस इस वाले सही आंसर आ रहा है। जैसे जैसे आरपीएम बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे स्टेबल के केस में, ठीक है, आरपीएम जैसे जैसे हम लोग बढ़ा रहे हैं, फ्लाईव्हील और दूर भागेगा और दूर भागेगा और दूर भागेगा, रेडियस बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। ठीक है, आइसोक्रोनस में क्या होता था, सेम आरपीएम मिलेगा, सेम रेंज ऑफ स्पीड, यानी कि इसमें आइसोक्रोनस के केस में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ, N1 इक्वल टू N2 होगा, है ना। और N3 भी आएगा, तो N3 या R1 रेडियस पर है, या R2 रेडियस पे है, या R3 रेडियस पे है, इसी तरीके से R4 R5, तो सारे के सारे के केस में we all will be having the same RPM but having the different radius, ठीक है। This was the case for the isochronous, however case तो for the case of a stable we get, as we increase the equilibrium speed we will get the more radius, यही होना भी चाहिए, ठीक है। ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो ज्यादा वो फ्लाई बॉल दूर भागेगा। ओके, तो ये वाला सेम क्वेश्चन है, गवर्नर विल बी स्टेबल इफ द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल इंक्रीजेस एज द इक्विलिब्रियम स्पीड डिक्रीजेस, नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। इंक्रीज करोगे, इन इंक्रीज होगा, ठीक है, तो आर भी इंक्रीज होना चाहिए, ये इस टेबल का, स्टेबल इक्विलिब्रियम का, स्टेबल गवर्नर का, स्टेबल गवर्नर का डिफिनेशन बोलता है, ठीक है। स्टेबल गवर्नर का डिफिनेशन है, इंक्रीजेस डिक्रीजेस एज द इक्विलिब्रियम स्पीड इंक्रीजेस, नहीं, increases as the equilibrium speed increases, yes, this will be our answer, ठीक है। आरपीएम बढ़ेगा तो रेडियस ऑफ radius will also be, okay, increases, radius of rotation of the ball increases as the equilibrium speed increases, okay। और ये प्रैक्टिकल होता है स्टेबल वाला। हाँ, ए गवर्नर इज सेड टू बी हंटिंग इफ द स्पीड ऑफ द इंजन, देखो हंटिंग एक और डिफिनेशन आता है, ठीक है। हंटिंग क्या होता है, हंटिंग गवर्नर में एक प्रोसेस होता है, हंटिंग इज द प्रोसेस, हंटिंग is the process is the process in which hunting is the process of continuous, the process of continuous fluctuating fluctuating sleeps sleeps for longer period whenever whenever there is change in speed, change in speed, ठीक है। यानी कि जब हम लोगों का स्लीप्स है, ठीक है, ये स्लीप्स है, ये कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट कर रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, फ्लक्चुएट कर रहा है, फ्लक्चुएट मतलब अप एंड डाउन मोशन, अप एंड डाउन, अप, ठीक है, अप एंड डाउन, उसी को फ्लक्चुएशन बोलते हैं।
फ्लक्चुएटिंग कर रहा है। जब इंजन पे लोड, जैसे ही इंजन का स्पीड चेंज होता है, उसी को बोलते हैं हंटिंग। ठीक है, थोड़ा तो if governor is too too sensitive, then governor is said to be hunt, is said to be hunt। ठीक है, उसको हंट बोलेंगे। ज्यादा सेंसिटिव, देखो सारे के सारे गवर्नर जो होते हैं सभी हंटिंग करते हैं। कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है। ज्यादा कौन करता है? जो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी कि थोड़ा सा आरपीएम बढ़ाए, वो स्लिप्स अप एंड डाउन काफी देर तक कर रहा है, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, उसको रुक जाना चाहिए वहां। ठीक है, स्टेबल मतलब कि इंजन को जैसे इंजन स्पीड चेंज किया उससे रुक जाना चाहिए तुरंत। ठीक है, लेकिन क्योंकि इनर्शिया के कारण थोड़ा बहुत तो गवर्नर अप एंड डाउन होगा, लेकिन तुरंत अब अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में आरपीएम में आ जाना चाहिए। लेकिन कुछ गवर्नर ऐसे होते हैं, उसको हंटिंग ज़्यादा बोलते हैं, जो कि ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। वो काफ़ी देर तक वो 5 सेकंड तक वो अप एंड डाउन करते रहेंगे। कोई 2 सेकंड तक अप एंड डाउन करेंगे, तो वो जो 2 सेकंड तक करेंगे वो लेस हंटिंग। ठीक है, जो 5 सेकंड तक करेगा दैट वी विल से द मोर हंटिंग। ठीक है, तो हंटिंग शुड बी मिनिमम। ठीक है, तो ये लोड ऑन स्पीड इंजन जो देखो, फ्लाई व्हील में और गवर्नर में डिफरेंस क्या है? फ्लाई व्हील में और गवर्नर में डिफरेंस क्या है? देखो, फ्लाई व्हील हम लोग आईसी इंजन केस में, ठीक है, गवर्नर कहाँ यूज करते हैं? ठीक है, वहाँ हाइड्रो पावर प्लांट में, हाइड्रो पावर प्लांट में। ये कहाँ यूज करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट में? जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लाईव्हील तो देख लिए हम लोग, है ना। इट कंट्रोल्स द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ठीक है, स्पीड। ठीक है, फ्लाईव्हील। गवर्नर क्या करता है? कंट्रोल्स द फ्लक्चुएशन ऑफ लोड। ठीक है, ये दो अलग अलग वर्ड आई हैव यूज, दिस वन इज स्पीड एंड अनदर इज लोड। क्या मतलब? स्पीड क्या हुआ? जब फ्लाईव्हील जब फ्लाईव्हील ठीक है, यहाँ से ऐसे रोटेट कर रहा है, तो जैसे मैं लास्ट लेक्चर में लिया था, ठीक है, जैसे ये पिस्टन क्या कर रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ धक्का दे रहा है, तो यहाँ पर पावर ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो फ्लाईव्हील में क्या हो रहा है? ऑब्जर्व हो जा रहा है। अब यहाँ पे जैसे ए बी सी डी, ठीक है, देखो ए बी सी में पिस्टन नीचे की ओर आ रहा है, तो ये रोटेट कर रहा है क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, ए बी सी में पावर ज्यादा फ्लाईव्हील में ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, ए बी फ्लाईव्हील में का वेट ज्यादा होता है, इसीलिए मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला में आता है। ठीक है, कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा? काइनेटिक एनर्जी 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर। जैसे सी से डी ए में जाता है, तो पिस्टन को ऊपर की ओर धक्का देना पड़ता है, तो धक्का कौन देगा? फ्लाईव्हील ही देगा ना। जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ था ए बी सी में, अब वो यूटिलाइज होगा सी डी ए में वापस पिस्टन को ऊपर तक पहुंचाने के लिए। पिस्टन ऊपर जाता है, दैट इज अ कंप्रेशन स्टेट, where A, B, C is the expansion state. Okay, so this was for controlling the fluctuation of speed. यहाँ ज़्यादा हो रहा था स्पीड, यहाँ कम हो रहा था, दैट्स वाई ओमेगा मैक्स यहाँ था या ओमेगा मिनिमम था लास्ट लेक्चर। ओके, तो इस मैक्सिमम मिनिमम को, ठीक है, क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा था एक मिनिमम एवरेज स्पीड में लाने के लिए। ठीक,
गवर्नर क्या होता है? गवर्नर जनरली कंट्रोल्स द फ्लक्चुएशन ऑफ लोड। ठीक है, देखो कोई हम लोगों का कार है ना, कोई हम लोगों का कार है। अब ये क्या होता है कार में कि कार में क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग का लोड बढ़ रहा है, अब लोड का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ पैसेंजर्स। ठीक है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स। ठीक है, पैसेंजर्स। ठीक है, क्या हुआ, बढ़ गया, मतलब 10 से 20 पैसेंजर बढ़ गए, तो स्पीड क्या होगा इंजन का, इंजन स्पीड, स्पीड जाहिर सी बात है डिक्रीज होगा, क्योंकि लोड ज्यादा बढ़ गया ना गाड़ी पर। ओके, हम लोग और व्हील के ऊपर, हाँ सॉरी, कार के ऊपर, ठीक है, 10 से 20 लोग चढ़ गए। ओके, तो क्या हो गया, लोड बढ़ने से, नंबर ऑफ पैसेंजर्स के बढ़ने से इंजन का स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। अब हमें तो गाड़ी चलानी है, तो उस केस में हम लोगों का फ्यूल सप्लाई ज़्यादा और देना पड़ेगा इंजन में। फ्यूल सप्लाई, सप्लाई वी विल हैव टू इंक्रीज, इंक्रीज। ठीक है, ताकि हम लोग वापस वही स्पीड गेन कर पाए कार को मूव करने के लिए। ओके, नाउ सेकंड केस, ये पहला केस था। दूसरा केस, यदि लोड हमें डिक्रीज कर देते हैं, यानी कि डिक्रीज द नंबर ऑफ काउंट ऑफ पैसेंजर्स, पैसेंजर्स का काउंट घटा दिया, सपोज 10 था, ठीक है, 10 पैसेंजर से 20 में गए थे। अब यहाँ 10 से हम लोग किस में जा रहे हैं, 10 से हम लोग सपोज 5 में गए, तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स घट गए। अब क्या होगा, इंजन का स्पीड, इंजन का स्पीड डेफिनेटली, ठीक है, लोड कम है तो बढ़ेगा। ठीक है, अब तेजी से भागने लगेगा हम लोगों का गाड़ी, लेकिन हमें तो भगाना नहीं है, हमें क्या करना, तब उस केस में क्या करना पड़ेगा, इंजन को, फ्यूल सप्लाई को, फ्यूल सप्लाई को कम करना पड़ेगा, डिक्रीज। ठीक है, we'll have to decrease the fuel supply, ताकि हम लोग एक इक्विलिब्रियम स्पीड में, जो डिजायर्ड स्पीड है व्हीकल का, उस पर ऑपरेट कर सके। ओके, सो लोड इज नथिंग हियर बट लोड इज हियर। ठीक है, ये वाला लोड को। ठीक है, तो वापिस आते हैं क्वेश्चन में, पूरा करते हैं। गवर्नर इज सेड टू बी हंटिंग इफ द स्पीड ऑफ द इंजन, पता है कंटिन्यूस फ्लक्चुएट अप एंड डाउन, फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, तो ये फ्लक्चुएशन वही बोलते हैं, यहाँ पर कहीं वर्ड एक फ्लक्चुएशन आ गया, मतलब यही। ठीक है, ये होगा कंटिन्यूसली फ्लक्स, गवर्नर इज सेड टू बी हंटिंग इफ द स्पीड ऑफ द इंजन is below the mean speed, above the mean speed, remains constant at the mean speed, fluctuates continuously above and below the mean speed. Okay, definitely D होगा आंसर। ठीक है, so this was all about the questions based on governor. Okay, so very few questions, okay, been asked in the governor, but are very simple. Okay, so you have to prepare all those, okay, according to the syllabus. Okay, so this graph which I discussed right now is very important. Similarly, you will be finding a number of questions been asked in the last previous years, both in service examination and gate examination. Okay, you can go and practice with these questions. Okay, now I will come in the next lecture. I am going to start, okay, gear, 2-3 gear, very important and interesting chapter. Okay, so don't miss these lectures. Okay, so because this all these chapters are
of very great importance and very large weightage of these questions. Okay, they ask in the examination. Okay, so thank you all. Let's meet in the next classes. Thank you all.